6 years old, 7 years old. How is it that they reach so far? Lord Krishna, he lives in Nandagram, or before that in Chatikara, near where our Krishna Balaram Mandir. 5-year-old boy, how can they travel? It took us like almost an hour and a half to get here by car. तो हमारा मन में ये प्रश्न आता है, तो भगवान कृष्ण तो नंदगांव में थे, कभी छठीकरा में रहा करते थे, तो 5 साल के बालक इतना दूर कैसे आ सकता है? Anyone have an answer? क्या आपका कोई उत्तर है उसके लिए? It says yes, because of the lotus flower. It's like the lotus flower, it contracts, and at the same time, a certain time of the day, it spreads the petals. तो वृंदावन धाम जो है पद्म फूल के समान है, तो दिन के समय ये खुल जाता है और रात्रि के समय बंद हो जाता है. So Vrindavan is compared to a lotus flower. तो वृंदावन एक पद्म फूल के तुलना किए गए हैं. Is that night time closes? तो रात्रि के समय बंद हो जाता है. It spreads दिन के the समय petals. खुल जाता है. So when it's contracted, then it's closer, and then when it spreads out, then it becomes far. जब ये बंद हो जाता है, ये पास आ जाता है, और जब खुल जाता है फिर एक दूसरे से अलग हो जाता है, दूर चला जाता है. So even for a 5-year-old boy, Lord Krishna and the cowherd boys, they can travel really fast. They can go from there, they can go to Radhakund. Of course, in Radhakund, the cowherd boys cannot enter. तो इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो 5 साल का छोटा बालक भी इतनी दूरी तक आ सकता है, लेकिन जो राधा कुंड है वहाँ पर एक बालक को प्रवेश नहीं है. There are different kinds of cowherd boys according to Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत के हिसाब से और अलग प्रकार का ग्वाल बालक होते हैं. There are regular cowherd boys that serves Lord Krishna, and then there's another one. It's like unequal. There's more there. Always want to protect him. See, it gets mixed when some cowherd boys, elder cowherd boys, would like to serve Lord Krishna. That is in the mood also of Vatsalya, protector. कई प्रकार का ग्वाल बालक होते हैं जो छोटे श्रेणी का होते हैं, मध्यम श्रेणी और बड़े श्रेणी का रहते हैं. So yes, जो छोटे श्रेणी का रहते हैं ये उनके सेवा करते हैं, और जो बड़े श्रेणी के रहते हैं उनका सेवा अलग होती है. And there's another kind or type of Sakha who is very, very intimate, that even in most intimate pastimes of Radha and Krishna, he can come, like Ujjwala. तो इस प्रकार का कई एक सखाएं होती है जो भगवान कृष्ण राधा रानी के अंतरंग लीला में भी अंशग्रहण करते हैं. So yes, we just came there first time, the sliding hill, and then we went to Bhyomasura cave. It's a big austerity to go up. तो इसके उपरांत हम ब्रह्मासुर गुफा का दर्शन किए. ये बहुत बड़ी तपस्या है वहाँ चढ़ने के लिए. Bhyoma means air or space. व्योमा का अर्थ होता है वायु अर्थात आकाश. So Bhyomasura is an asura or a demon who can disguise himself very, very expertly. व्योमासुर का विशेषता है वो अपने को अलग अलग रूप में छद्म वेश धारण कर सकता है. And so one day the cowherd boys are playing their game, and Bhyomasura disguised himself as a cowherd boy. तो एक बार सारे ग्वाल बाल आपस में खेल रहे थे, तो व्योमासुर ने क्या किया कि वो एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आ गया. And somehow or other, Lord Balaram also, he knew that there is a demon here, and Krishna also, he knew that there is a demon amongst them. But Bhyomasura, while playing with the cowherd boys and Krishna Balaram, he one by one took the cowherd boy, or a cowherd boy, and hid in that Bhyomasura cave. तो भगवान कृष्ण और बलराम जी को ये पता चल गया था कि एक असुर उनके बीच में है. तो व्योमासुर क्या करता था, खेलते खेलते एक एक करके ग्वाल बाल को लेकर वो गुफा में डालता था. So who is another personality who took the cowherd boys? तो Lord Brahma, yes, Brahma. तो और कौन Vimohan थे? Leela. He took also the cowherd boys, because see, the demigods, they're watching all the activities of Lord Krishna. सारे देवता लोग भगवान की इस लीलाओं को देखते रहते हैं.
the demigods, they're watching from above, and they're whenever Krishna will kill a demon or doing his pastimes, they will always have a jubilant. Everyone was so joyful. Everyone will make musical instruments, kettle drums, and singing the glory. So one day Lord Brahma was thinking, what's going on here? What is this commotion going on? तो जैसा कृष्ण का लीला के समय सारे देवता लोग ऊपर से इसको दर्शन करते थे, तो बहुत प्रसन्न होते हुए वो नृत्य करने लगते थे और वाद्य भी बजाते थे. So he took the cowherd boys also, and Bhyomasura also at the same time. But then finding out Bhyomasura did it, then Krishna killed him. तो जब कृष्ण को ये पता चला कि एक ग्वाल बाल को चोरी करके लेकर गुफा में डाल रहे हैं, तो भगवान इनको मार दिए. So we've been to a few places there, that mountain, the place where there's a lotus feet of Lord Balaram, or उसके Lord ऊपर हम Krishna. down. Oh, down is Lord Balaram, upstairs is Lord Krishna and his hands, fingerprints. तो आप लोगों ने दर्शन किया ऊपर के जो पहाड़ में भगवान के चरण चिन्ह और उनके हाथ का निशान है, और नीचे बलराम जी का चरण आपने दर्शन किए. Did you have darshan also of the jewels? Because तो आप लोगों में से जो कौस्तुभ मणि का जो उसके भी दर्शन किए, the jewels of Lord Balaram, Bhyomasura, kind of like took, तो and बलराम then जी, it all spread in that place. Did you see that? क्या आप लोगों ने वो दर्शन किया जो बलराम जी के जो कौस्तुभ मणि को ब्रह्मासुर ने यहाँ वहाँ फेंक दिया था. So Sakyaras is very thick here. So This- today we had experience of that feeling of how to be friends with Lord Krishna. तो यहाँ पर साक्षरस का बहुत प्रभाव है. तो आप लोग यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि भगवान के जो साक्षरस का कैसा प्रकार प्रभाव था. Sakyaras, the transcendental friendship with Krishna, is not just a historical reality of Goloka Vrindavan, but a living experience that can be cultivated. तो ये जो साक्षरस है, ये केवल वृंदावन के जो है एक अनुभूति नहीं है, बल्कि इसको हम अपने आचरण में भी ला सकते हैं. In a spiritual practice, in our own spiritual practice. तो हम जो भक्ति का अभ्यास करते हैं, इसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. We should develop a personal connection with Krishna. हम भगवान कृष्ण से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापन कर सकते हैं. There are many ways how we can do this one. We can talk to Krishna as a friend. तो इसके लिए अनेक प्रकार का उपाय है. जैसा भगवान से हम एक मित्र की तरह बात भी कर सकते हैं. Of course, we're not like the cowherd boys who treat Krishna as equal. For us, Krishna is still the Supreme Personality of Godhead, but just like a father, he can be also our friend. जो ग्वाल बाल के तरह हम उतने करीब नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से प्रेमपूर्ण बात करते हैं, वो भी भगवान को हम पिता के रूप में हम उनसे बात कर सकते हैं. We can cultivate a habit of speaking with Krishna like a friend. हम लोग कृष्ण के साथ एक मित्र की तरह बात करने के जो है अभ्यास कर सकते हैं. We can share our thoughts, हम लोग our struggles, our hardships, our problems. It's like a friend telling what's happening in your inside. जिस प्रकार एक मित्र दूसरे को अपना सारे उलझन और समस्या के बात कहता है, तो इस प्रकार हम भगवान कृष्ण से भी बोल सकते हैं. And Krishna knows everything. He listens everything that we can tell him. Even we don't have to tell him, he knows anyway. अगर हम कृष्ण को नहीं भी बोलते हैं, तो भगवान इसको जानते हैं. We can ask Krishna, what do you think? तो हम कृष्ण को पूछ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं. Should I do this or should I do that? क्या मैं करना चाहिए या नहीं करूं. I know you're always guiding me, so please show me the way. तो मैं जानता हूं आप मुझे हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन कृपा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए. We should invite Krishna every day in our life. तो हम लोग प्रत्येक दिन अपना जीवन में भगवान को इनवाइट कर सकते हैं. It's like the cowherd boys. जिस प्रकार ग्वाल बालक लोग करते थे. They include Krishna for whatever they do. वो जो कुछ करते थे उसमें भगवान को शामिल करते थे. So we should also consider remembering Krishna for everything that we do. तो हम लोग भी जो कुछ करते हैं इसमें भी कृष्ण को शामिल कर सकते हैं. Like while cooking, Matajis and Prabhus also sometimes. जब हम रसोई करते हैं भगवान के लिए, और कोई माता जी हो या प्रभु जी हो, So one may say, Krishna, I'm cooking this meal for you today.
तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हे कृष्णा, मैं आपके लिए ये रंधन कर रहा हूँ, just like Mother Yasoda did. जिस प्रकार माता जसोदा ने की थी। Seeing Krishna as your constant companion. तो हम लोग ऐसा देखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। So the cowherd boys never feel alone. They always think Krishna is the center of their life. तो ग्वाल बाल जो थे कृष्ण को कभी अलग नहीं देखते थे। Just like here, we are in Bojantali. This is the place where they will take prasadam. यहाँ पर जो भोजन स्थली में भगवान ग्वाल बाल के साथ प्रसाद लेते थे। Naturally made plate and katoris. ये जो है नेचुरल जो है, आप लोग देख सकते हैं कटोरी का निशान। This is Kshir Sagar. पीछे जो है यहाँ पर खीर सागर था। The ocean of milk. You see there's a white markings here in this stone, in this shila. That is from the milk flowing, going towards that direction. शिला के ऊपर जो धाला, जो सफेद का निशान है, ये दूध का धारा यहाँ से बहते हुए दूध सागर में मिलता था। I remember coming here before because we did the Brajamandal Parikrama sometime during the early 90s, and this is full of water. Devotees will go dive and take bath over there. जो महाराज पहले आए थे 1990 में यहाँ पर, तो उस समय ये पूरा खीर सागर जो खीर से भरा हुआ था और सारे भक्त लोग वहाँ छलांग मारते थे। So Bojan Tali, that means Bojan, prasadam. Oh, I'm sure you're hungry right now, right? अभी सब लोग को जरूर भूख लगा रहेगा। I'm sorry I have to mention Bojan, prasad. So every day they will have tiffins being brought by each and every cowherd boy, prepared by their respective mothers. हर एक ग्वाल बाल अपने अपने माता के जो बना हुआ जो भोजन को अपना टिफिन बॉक्स में लेकर आते थे। And what they will do is they will have Krishna as the main center, and they will all sitting down in a circle, being Krishna as the center. तो वो लोग क्या करते थे, भगवान कृष्ण को बीच में बिठाकर चारों तरफ बैठते थे। Bhushan, sit down. Sit down. So they will all sit down like our Swamis here. We will all ask him also to sit down. तो अभी हम स्वागत करेंगे परम पूज्य राधे श्यामानंद स्वामी महाराज को, और उनके साथ और भी स्वागत करेंगे परम पूज्य गोपेंद्र कृष्ण महाराज को। So they will all sit down, and Krishna will be in the center, and then it's like a concentric circle, small circle, then bigger circle, all surrounding Lord Krishna. तो सारे ग्वाल बाल जो गोलाकार रूप में बैठते थे, भगवान उसको केंद्र में अर्थात सेंटर में बैठते थे। Now don't think that they're only like few hundreds, there are thousands of them. ऐसा मत सोचिए कि कोई 100 की संख्या में थे, लेकिन हजारों की संख्या में ग्वाल बाल। It's like Lord Krishna says that he has 3 billion gopis, cowherd girlfriends. जैसा कृष्ण के 3 बिलियन गोपियां थे। Can you imagine 1 billion? That's over 1 billion, the population of India right now. So भारत के लोक संख्या 1 बिलियन से अधिक है, तो आप लोग So कल्पना कर 3 सकते billions is quite a lot. हैं। 3 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है। So do you think the cowherd boys are lesser in number? तो क्या आप लोग सोच रहे हैं ग्वाल बाल का संख्या छोटा था? There are as many also, as many cowherd boyfriends and cowherd girlfriends of Lord Krishna. भगवान के अनेक जो है ग्वाल बाल और गोपियां थे। And it says in those days, 5,000 years ago, the road is so wide because each and every gopa will have tens and hundreds and thousands of cows and calves. तो उस समय 5000 साल पहले जो रास्ता थे बहुत चौड़ा था, तो एक एक जो ग्वाल बाल था उसके साथ कई गायें साथ में जाते थे। How many cows and calves Nanda Baba has? नंद बाबा के कितने गायें थे? 9 lakhs. Okay, just to give us a figure, but actually it's more than 1 million. वास्तविक में 1 मिलियन से भी अधिक थे। So how can Lord Krishna, and he has practically unlimited cowherd boyfriends, bring the cows to the pasturing grounds of Braj? That means you need a really wide road, not like what we have right now. तो उससे आप कल्पना कर सकते हैं भगवान इतने 9 लाख गायों को
किस प्रकार गाय चराने के लिए जब जाते थे, तो इसका अर्थ है कि जो जो उस समय जो रास्ते थे बहुत चौड़ा थे। So every day they will carry tiffins with them. तो प्रत्येक दिन अपने अपने साथ टिफिन कैरी लेकर आते थे। And they will be just, actually their main purpose is not to just tend the cows and give them green grass, but their main purpose is to play. भगवान के वास्तविक उद्देश्य ये नहीं था कि गाय चराने का, तो मुख्य उद्देश्य ये था तो उनको ग्वाल वाल के साथ खेलना था। So when they will feel hungry, they will eat prasad, whatever they brought from home. जब खेलते खेलते जब भूख लगता था तो अपने घर से लाया हुआ प्रसाद वो पाने के लिए आते थे यहाँ। And they will have a game actually, तो उस समय क्रीड़ा होती थी आपस में। while even eating. और भोजन के समय भी क्रीड़ा करते थे। They would steal each other's tiffin. वो एक दूसरे के टिफिन को चुरा लेते थे। And sometimes it says that because they have different types of prasad, rice, curd rice, जो विभिन्न प्रकार का प्रसाद हुआ करता था, जैसा दही भात और भात हुआ करता था। that means rice mixed with yogurt, fragrant rice with yogurt. जिस प्रकार अन्न के साथ दही मिला हुआ रहता They था, will have also chutney and achar, उसके साथ चटनी और अचार भी हुआ करता था, like what we had yesterday, जैसा हम कल पाए थे। amla achar. इमली का अचार भी रहा करता They था। have different types of sweets, ବିଭିନ୍ନ gulab jamuns, jalebi, all these things. विभिन्न प्रकार का मिठाई हुआ करता था, जिस प्रकार गुलाब जामुन, जिलेबी इत्यादि। I'm making you hungry, really. इसको सुनेंगे तो आप भूख और बढ़ जाएगा। Different types of fruits, विभिन्न mangoes, chicos, and all these विभिन्न प्रकार का exotic fruits. फल भी हुआ करता था, जैसे आम और चीकू इत्यादि। So what they will do is they will offer first to Krishna whatever they have. तो ग्वाल वाले लोग क्या करते थे, सबसे पहले अपना टिफिन को भगवान को अर्पण करते थे। And after Krishna eating what they offered to Lord Krishna, they will take that prasad from Krishna and they will eat तो themselves. कृष्ण उसको ग्रहण करने के बाद तो ये सारे ग्वाल वाल उसको भी पाते थे। And sometimes also they will put some really hot spicy prasad from others prasadam, mix it up. तो कभी कभी वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से जो तीखा प्रसाद रहता था उसको मिक्स कर देते थे। So when they eat, they will eat, oh, it is supposed to be sweet. How come it is very spicy hot? जो वो पाते थे वो तो मीठा होना चाहिए, लेकिन ये कड़वा कैसा लग रहा है। This is how they treat each other. Because the cowherd boys, being friends of Lord Krishna, they don't consider Krishna as a supreme Lord. They treat him as equal. तो इस प्रकार जो ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को अपने समान मानते थे। But the main characteristic of Sakyaras is that they interact with Lord Krishna freely, but very, very intense, with intense love and devotion. तो साक्षरस की मुख्य बात यह है कि भगवान कृष्ण के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। Some of them even go on top of the shoulders of Krishna and Balaram. उनमें से कभी कभी वो लोग कृष्ण के कंधे पर भी चढ़ जाते थे और बलराम जी का। There is no, in any religions, there is no concept of God like in our understanding in Gaudiya Vaishnava. कोई भी धर्म अनुष्ठान में इस प्रकार के व्यवहार भगवान के साथ नहीं देखा जाता है, जैसा जिस प्रकार गौड़ीय वैष्णव में देखा जाता है। So we gave a class the other day in Krishna Balaram Mandir that Krishna is equal to everyone. जैसा हम कुछ दिन पहले क्लास दिए थे हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में कि कृष्ण बाकी ग्वाल वाल से समान है। He treats everyone accordingly. वो सभी को उनके हिसाब से व्यवहार करते हैं। Don't think that Mother Yasoda or the cows are lesser than Mother Yasoda. तो आप लोग ये मत समझिए जो गायें हैं ये माता जसोदा से भी कुछ कम है। Actually, Lord Krishna will spend more time with his cowherd boyfriends than Mother Yasoda. वास्तविक में भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वाल का जो मित्र थे उनके साथ अधिक समय बिताते थे जितना माता जसोदा के साथ बिताते थे। I was reading the other day that Krishna will spend minimum 12 hours with the cowherd boys.
महाराज पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि भगवान कृष्ण 12 घंटा अपने ग्वाल बालक के साथ बिताते थे। The cowherd boys will come really early to wake up Lord Krishna. तो सुबह बहुत जल्दी ही ग्वाल बाल आ जाते थे भगवान को उठाने के लिए। Just as the sun rises. Now the sun rises like around 6:30. जिस समय सूर्य के उदय होता है, जिस प्रकार अभी 6:30 बजे के सूर्य उदय होता है। And the whole day, the cowherd boys will be with Krishna till 6:30 in the evening. इसके उपरांत पूरे दिन भर शाम को 6:30 बजे तक ये ग्वाल बाल के साथ भगवान कृष्ण। And Mother Yasoda will not be able to spend that much, 12 hours, isn't it? Maybe only putting Krishna to bed or waking up Lord Krishna, and that's it. माता जसोदा इतना समय भगवान के साथ नहीं बिता पाते थे। So how fortunate the cowherd boys are. तो वास्तविक कितने भाग्यवान है ये ग्वाल बालक। And how fortunate the cows and the calves are. और कितने भाग्यशाली है ये गौएं और बछड़े। How fortunate the trees are who will give shades when the cowherd boys and Lord Krishna, after playing, pasturing the cows and the calves, they will feel tired and they will be giving relief from the fatigue of the cowherd boys. वास्तविक में ये जो यहाँ पर वृक्ष लताएं हैं कितने भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब क्रीड़ा करते करते धूप में वो थक जाते थे, इनके वृक्ष के छाया में विश्राम करते थे। I will not go too much because we are running behind time. But there's so many things about Sakya Ras. And now we're just having a feeling of what is Sakya Ras means. And we can feel that especially in Kamyavan. समय का अभाव के कारण मैं महाराज से डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये काम्यवन में विशेष करके साक्ष्य रस का प्राधान्य देखा गया है। Hopefully someday we can spend more time here in Kamyavan, but today only half day. तो आगे जाकर हम कभी यहाँ पर और समय अधिक बिता सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही हम। I'll give you a conclusion here. The mood of Sakya Ras in our daily lives, we can gradually develop a real friendship with Krishna. साक्ष्य रस का जो भाव है, तो हमारा नित्य प्रतिदिन जो कार्य हम करते हैं, तो हम भगवान कृष्ण से ये संबंध स्थापन कर सकते हैं। He is not just a distant deity, but a loving friend who is always with us. भगवान कृष्ण एक दूर के एक विग्रह नहीं है, बल्कि हमारे एक बहुत प्रेमी मित्र है जो हमारे साथ रहते हैं। How we can do this? By talking to him. हम कैसे कर सकते हैं? उनसे बात करते हैं। Sharing our life with him. हमारा जीवन के सारे बातों को उनसे जो शेयर करके। Trusting him. उनके ऊपर विश्वास करके। Krishna, I trust you. It doesn't matter what happens to me. हे भगवान कृष्ण, मैं आपके पूरे विश्वास करता हूँ। I know you only want the best for me. मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है। And relish his pastimes. और इन लीलाओं का हम आस्वादन कर सकते हैं। In this way we can transform our daily life into an extension of Vrindavan. इसी प्रकार हमारा नित्य जीवन के वृंदावन के जीवन की तरह। Vrindavan is more than a place. It is our consciousness. So wherever you go, these photos or videos is not enough. You should capture Vrindavan within your heart, so you can carry Vrindavan wherever you go. वृंदावन एक स्थान नहीं है, बल्कि एक चेतना होती है। जिस प्रकार हम कैमरा में फोटो खींचते हैं, हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वृंदावन में, तो उनका फोटो हमारा हृदय में छापना चाहिए। Photo will go. फोटो जो है ये तो चला जाएगा। But your heart will never go. हमारा हृदय कभी नहीं जाएगा। Heart is always with you. हृदय हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। Because the soul has a heart. Because आत्मा का भी एक हृदय होता है। It's not the one that's pumping the blood. जो यहाँ जो खून सर्कुलेट करने वाला हार्ट नहीं। So you take Vrindavan with you, but at the same time give Vrindavan to everyone you meet. तो आप लोग जो है वृंदावन को अपना हृदय में धारण कीजिए और सभी को इसको बांटिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I know the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गुरुतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्ते। तप्त कंचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। जय श्री राधा गोविंद देव के जय श्री वृंदा देवी के। तो पहले हम लोग थोड़ा रूप गोस्वामी के बारे में सुनेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा राधा, टाइम बहुत कम है तो राधा गोविंद देव और वृंदा देवी के बारे में थोड़ा बहुत सुनेंगे। So first of all we will hear about Rupa Goswami because time is short. So then we will hear about Radha Govind ji and Vrinda Devi. माता जी प्लीज़ बातचीत मत कीजिए, कथा सुनेंगे तो फिर अच्छे से कथा सुनेंगे तो दूसरे को सुनाने के लिए सुनने के लिए मौका मिलेगा। रूप गोस्वामी की परंपरा है, जैसे पद्मनाभ के पुत्र है मुकुंद के पुत्र है कुमार, और कुमार के 3 पुत्र के नाम है सनातन, रूप और अनुपम। The disciples click succession of Rupa Goswami is Padmanabh and his disciple is? No disciple, son. His son is? Mukundadev. Mukundadev. And his Mukundadev is Kumar Dev. Then his son is Kumar Dev. Father of Rupa Goswami. Follower of Rupa Goswami. तो तीन भाई थे, सनातन, रूप और अमर, संतोष और बल्लभ। There are 3 brothers, Sanatan, Rup, Amar, Santosh और Vallabh. Before name is Amar, Santosh and Vallabh. The previous name was Amar, Santosh and Vallabh. तो आप जानते हैं कि उस समय बंगाल की जो नवाब थे वो थे हुसैन शाह। हुसैन शाह के दरबार में तीनों नौकरी करते थे। सनातन जी प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर और अनुपम भी कोई बड़े पोस्ट में सर्विस करते थे। So you all know that time Nawab Hussain was the king and all 3 brothers were serving under him. Rupa Goswami was the finance minister and Sanatan Goswami was the prime minister and also Anupam. सन्यास के बाद 5 साल बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बंगाल होकर वृंदावन आने वाले थे, तब उसी समय उनसे भेंट हुआ। So after taking sannyas, Lord Chaitanya was supposed to come to Vrindavan from Jagannath Puri. That time he met with this Rupa Goswami and his brothers. This place is वो place है राम केली। That place is known as Ram Keli. तो 12 बजे दोनों भाई अपने रॉयल ड्रेस को छोड़कर साधारण वेश में, वैष्णव वेश में आकर दोनों महाप्रभु से मिले। So at 12 o'clock, both the brothers, they came in the dress of Vaishnav to meet Lord Chaitanya. तो गले में वस्त्रों लगाकर बिल्कुल दंडवत होकर गिरे और महाप्रभु ने कहा उठो उठो, हो गया, मंगल हो गया। They were putting the garments on their neck and they offered their prostrated obeisances to Lord Chaitanya. Then Lord Chaitanya said, get up, you have become a Vaishnava.
तब उन्हें अपने बारे में बहुत नीच जाते नीचो संगी पतई तो अधम कुबिशर कूपे पोरी गोआइनो जीवन। तो अधम पतित पापी हम दो है और कुविषय, एक सुविषय और सुविषय। कुविषय के गड्ढे में गिरे और अपने जो समय अपने बिता रहे हैं। महाप्रभु से कहे इन लोग हाथ जोड़ करके। These two brothers, they told Lord Chaitanya, they were very fallen. नीचे जाति So we are very belong to a very low caste, and नीचे जाति नीचे संगी पति तो अधम। and we are always having a very bad association, and we are very fallen. कुविषय कुपे पड़ी गोआइनी जीवन। And we always talk about the material things. तो ठीक है, पद अभी छोड़ देते हैं। तो कथा इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य हम नियुक्त तो है जो आपको शायद कहने के लिए हमें शर्म आती है। तो मेरे कर्मों मुझे हाथ पे बंद कर दिया, गले में बंधा और गड्ढे में फेंक दिया। तो आप कृपा करके आप जगाई मादाई को उद्धार किया प्रभु। जगाई माधाई से करोड़ करोड़ गुना अधम पतित पापी हम दोनों हैं। तो आप पतित पावन है, हम सबसे ज़्यादा पतित है। यदि उद्धार करेंगे तो आपका पतित पावन नाम स्वार्थक होगा। They told Lord Chaitanya that we are so fallen that we are less than Jagai Madhai. So you are called as Patit Pavan. So now please deliver us. Then you will become very famous. तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, आप आज से तुम्हारा नाम हुआ रूप और सनातन, और मैं राम के लिए क्यों आया मेरी मन की बात कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सभी लोग मेरे साथ में जितने भी लोग थे ये लोग कहते तो राम वृंदावन जाएंगे तो राम के लिए क्यों जा रहे हैं। So then Lord Chaitanya gave them the name of Rup and Sanatan. But nobody knew why Lord Chaitanya came to Ramkeli. तो इसके बाद बोले कि ठीक है, उन लोग दोनों चाहा महाप्रभु के साथ में जाने के लिए। महाप्रभु कहे कि मैं जब वृंदावन जाऊंगा तब कैसे भी आप लोग दोनों आकर मिलना। Then both of them wanted to go with Lord Chaitanya. Then Lord Chaitanya said them that when I will go to Vrindavan, that time both of you can meet me. महाप्रभु रिटर्न जब जगन्नाथपुरी गए तो दोनों भाई के बारे में अपने इतने आनंदित होकर शेयर कर रहे थे, दोनों भाई कितने अच्छे हैं। जब Lord Chaitanya was going to Jagannath Puri, he was glorifying both the brothers like anything. They were saying, Lord Chaitanya was telling, they are very dear to me. दुई भाई भक्तराज कृष्ण कृपा पात्र व्यवहारे सुनिपुण हयो राजो पात्र विद्या बुद्धि भक्ति बले परम प्रवीण तबु आपनाके माने तृण हईतेहीन तार भक्ति देखी शुनी पाषाण विधरे आमी तुष्ट हइया तबे कहिलु दुहारे उत्तम हइया हीन करि मानो है आपनारे अचिराते कृष्ण तुम्हारे करिबे अंगी करे। तो बोले महाप्रभु उड़ी इतने खुश हो गए दोनों से मिलकर। जगन्नाथपुरी में जाके कहने लगे दोनों भाई भक्तों में राजा है, कृष्ण के कृपा पात्र है। Lord Chaitanya was so much pleased with both the brothers. When he went to Jagannath Puri, he said, these two brothers are the king of the devotees and they deserve my mercy. विद्या बुद्धि भक्ति वाले परम प्रवीण। तो विद्या बुद्धि भक्ति में परम प्रवीण नहीं, परम प्रवीण, फिर भी आप लोगों को मानते हैं तीनों से भी नीचे। Both the brothers are very expert in knowledge and in devotion and in intelligence. So that's why Mahaprabhu was glorified both the brothers, and he said they are the topmost. नहीं, वो आपने को मानता है एकदम तीनों से भी नीचे। But they were thinking themselves lower than the grass. तो उनके भक्ति को देखकर
पत्थर भी पिघल जाते हैं, मैं तुष्ट हो गया। महाप्रभु जी कहते हैं मैं खुश होकर कहा। When they are seeing their devotion, even the stone become melted. So then Lord Chaitanya said, I am very much pleased by seeing their devotion. उत्तम होकर अपने को हीन करके मानते हो, अचिरात बहुत जल्दी कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। You are so great, but you are still thinking you have to be very low. That is why Lord Krishna will be very much pleased with you. तो इसके बाद महाप्रभु उन्होंने अपने नौकरी से रिजाइन दे दिए, धन लेकर घर गए। बताइए। Then both the brothers, they resigned from their job and they went back to their own home. और दो आदमी को जगन्नाथपुरी भेजा कि वो जब महाप्रभु जाएंगे वृंदावन तब आके बताना, मैं भी वृंदावन जाऊंगा। Then they sent two people so that they will inform them when Lord Chaitanya will go to Jagannath Puri, to Vrindavan. तब जब महाप्रभु चल दिए तो दोनों आके बताए, रूप और अनुपम आकर प्रयाग तीर्थरस प्रयाग में महाप्रभु से भेंट किए। So then when Lord Chaitanya started to visit Vrindavan, so those people informed Rup and Sanatana Goswami, and then they met Lord Chaitanya at Prayagraj. केवल रूप और उनके भाई अनुपम आए थे जो सनातन जेल में थे। Rupa Goswami and Anupam, they came to meet Lord Chaitanya. That time Sanatana Goswami was in jail. तब महाप्रभु उनको शिक्षा प्रदान किया। That time Lord Chaitanya gave him this teachings. कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांतो सख सब शिखाइलो प्रभु भागवत सिद्धांत। भक्ति तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व के अंत तक सभी सिखाया भागवत के जो सिद्धांत है। Krishna Tattva, Bhakti Tattva, रस Tattva. They all taught about Srimad Bhagavatam till the end of the भागवत सिद्धांत। Bhagavat Siddhanta. तभी महाप्रभु उनको बोले, যোগ্য पात्र देखी शक्ति संचारिया सब तत्व निरूपिया प्रवीण करिला। योग्य पात्र, पहले हमें भक्ति करने के लिए पात्रता बनना है, तो योग्य पात्र देखा, शक्ति का संचार किया। मार्ची तो हर जगह है लेकिन पकड़ने वाला होना चाहिए ना, तो सब तत्व निरूपिया प्रवीण कर दिया। So first of all, one has to, we have to become eligible to accept the mercy. Then Lord Chaitanya, he imparted all his energy. तब कोई यदि जब रूप और सनातन वृंदावन आ जाते हैं, तो जब बंगाल से कोई आकर वृंदावन उनसे मिल के जाते तो बंगाल के वैष्णव लोग पूछते हैं। When the Bengali devotees, they come to Vrindavan, they used to ask. रूप सनातन देख कर जाके वो लोग पूछते हैं, बंगाल जब रिटर्न जाते हैं तो पूछते हैं कैसे हो, वो लोग कैसे हैं। So when these devotees from Bengal, they visit Vrindavan and go back to Bengal, all other people they used to ask, how is Rupa Goswami, how is Sanatana Goswami? कोई से रोहे, कोई से वैराग्य, कोई से भजन, कोई से अष्ट प्रहार करे श्री कृष्ण भजन। कोई से रहे, कैसे रहते हैं, क्या वैराग्य कैसे है, भोजन क्या करते हैं, अष्ट प्रहार क्या कैसे भजन करते हैं। So how they are staying in Vrindavan, how they are doing their bhajan, how they are practicing their renunciation in Vrindavan. They used to ask. অনিকেতে দুহে বনে যত বৃক্ষ গান, একাক বৃক্ষের তলে একাক রাত্রি শয়ন, বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাহা মাধো করি, শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি, হাতে করুয়া সেরা কান্থা বহির্বাস, কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্তন উল্লাস, অষ্টপ্রহার কৃষ্ণ ভজন চারি দণ্ড শয়ন, नाम संकीर्तन से नहे कोनो दिन। तो पहले बताए थे 4 प्रश्न था, कैसे रहे, कैसे वैराग्य कैसे है, रहते कैसे हैं,
वैराग्य कैसे, भोजन कैसे करते हैं, अष्टप्रहर कैसे भजन करते हैं। So those four questions question. they asked, how they are staying, how they are eating, how they are practicing renunciation, and how they are doing their bhajan. तो पहली बात अनिकेत, घर नहीं है, अनिकेत तो वृक्ष, वन में वृंदावन में जो वृक्ष है, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि शयन। So they were staying in Vrindavan one night under one tree. विप्रोगृह स्थूल भिक्षा का ब्राह्मण के घर में बनाए हुए भोजन लेते थे और कहा माधव करी, सूखे रोटी और चाना चिबाते थे, भोग को परिहार, भोग को त्याग कर देते थे। So they used to take, they used to do madhukari and take only dried chapatis and the chana. So this was their renounced life. हाथे कोड़ुआ, हाथ में कमंडल है, चेहरा कंथा पहनने हुआ और ओढ़ने वाले जो है फटा हुआ है, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम में नर तो नाचते हैं और उल्लास के साथ। तो they were wearing very torn clothes and they were holding danda and kamandalu in their hands, and they are always merged in discussing Krishna katha. अष्टप्रहर कृष्ण भजन 4 दंड शयन। So only they were sleeping for hardly 2 hours. one One and a half to 1.5 hour per day. 22 minutes 1 dando, 64 dando, so 24 hours. So 22 minutes is 1 danda. So 64 they used to sleep 2 dandas. That means 44 minutes, less than 1 4 hour. दंड शयन, 4 दंडो, 4 dandas. 88 minutes. 88 minutes, So nearly 1.5 hour. 1.5 hours। 4 दंड शयन। नाम संकीर्तन से न है कोनो दिन, तो नाम संकीर्तन करते करते वो कभी सोते भी नहीं थे। So they were so much busy in doing chanting the holy name, they could not even sleep properly. कभी भक्ति ग्रंथ, कभी कभी भक्ति ग्रंथ लिखते थे, चैतन्य कथा कहे करे, चैतन्य की कथा करते हैं और चैतन्य की चिंतन करते हैं। So they were writing the devotional books, they were thinking about Lord Chaitanya, and they were talking about Lord Chaitanya. तो इसी प्रकार जो इनकी रहने का वृंदावन के बारे में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। So Krishnadas Kaviraj Goswami has described like this about Rupa Goswami's stay in Vrindavan. तब उसके बाद उन्होंने भक्ति की शिक्षा के दिए है, बहुत लंबा शिक्षा है। तो सारा ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव जो है भक्तिलता गुरु और कृष्ण के कृपा से मिलते हैं। तो So like this they taught the cult of devotion, that who are very fortunate, they get the spiritual master and Krishna in their life. तो इसके बाद उन्होंने पूर्ण शुद्ध भक्ति के बारे में, रस तत्व के बारे में, 5 रस के बारे में बताए हैं। इसमें ही बताया, कांधे चौरे करे कृष्ण रा, कांधे चौरे करे कृष्ण रान, कृष्णो सेवे कृष्ण करे आपनी सेवन। जैसे जनार्दन महाराज बोल रहे थे, साक्ष्य रस के बारे में वर्णन करते हैं, शोल्डर में ऊपर कंधे में चढ़ाते हैं, कंधे में चढ़ जाते हैं, करे किरण, मारपीट करते, कुश्ती लड़ते हैं, कृष्ण सेवे, कृष्ण की सेवा भी करते हैं, कृष्ण से अपना सेवा भी कराते हैं। So they described all the 5 rasas. Out of that, just like Janardhan Maharaj was describing few hours earlier, that how these gopas, they used to climb over the shoulder of Lord Krishna, and they were also fighting with Lord Krishna. 5 रस की एक विशिष्ट गुण है, शांत रस की निष्ठा है। The 5 rasas are different specific characteristics. So Shanta rasa has the characteristic of nishtha. और दास्यों में सेवा, In Dasya ras as the mode of servitorship or service. साक्ष्य रस में विश्वासमय सेवा, विश्वास, मैं कुछ कहूँगा कृष्ण टाल नहीं सकते हैं, विश्वास। In Sakshya ras, it is like with full faith to serve Krishna. और वात्सल्य रस में पालन, वो जशोदा मैया की भाव रहती है कि मैं पालन करता हूँ कृष्ण की। And in Vatsalya ras, just like Mother Jashoda was thinking
I am the maintainer of Lord Krishna. माधुर्य रस में अपने अंगों को देकर सेवा करती है। And in Madhurya Ras, they were serving the Lord by seeing the Angat, Prem, body. बॉडी निज अंगों से सेवा। तो इसी प्रकार पास रस के बारे में बताए, तो इसके बाद ये प्रयागराज में हुआ। So like this, they described about the 5 rasas in Prayagraj. तो महाप्रभु जब जा रहे थे, रूप गोस्वामी ने कहा मैं आमी संगे आशी। प्रभु ने कहा तुम निकटे आशियसु, तुम ही जाओ वृंदावन। तो महाप्रभु जी ने, रूप गोस्वामी बोले मैं आपके साथ में आशी, अब मैं चलूँ? बोले नहीं, आप नज़दीक आ गए, वृंदावन जाओ। So when Mahaprabhu was going, Rupa Goswami asked him, "Can I go with you?" Mahaprabhu said, "No. Why, you don't go with me." 2-3 महीना रहे, फिर अनुपम को लेकर बंगाल गए। He stayed for 2-3 months in Prayagraj. Then he went with Anupam to Bengal. बंगाल में जाकर 10 महीना तक बंगाल से जगन्नाथपुरी जाकर 10 महीना तक महाप्रभु के साथ में रहे। Then he went to Jagannath Puri and stayed for about 10 months with Lord Chaitanya. तब फिर वृंदावन आए। Then he came back to Vrindavan. आप लोग जानते हैं कि 25% प्रॉपर्टी उन्होंने पैसा मानी रखे थे। You all know that the wealth he kept, out of that 25%, उस पैसा को जब दोबारा गए, सभी पैसा को लाकर फिर दोबारा बंटवारा करके एकदम जीरो होकर आए। then that also he distributed amongst people. Then his account become zero. सेकेंड टाइम, हाँ। तो इसके बाद आने के बाद दोनों भाई मिलकर महाप्रभु की आज्ञा थे। So after that, both Sarup and Sanatan Goswami, they become the obedient servants of Lord Chaitanya. तो भक्ति उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे, विग्रह के प्रकाश करना, लुप्त तीर्थों की वैराग्य कर कीर्त क्या है, वैराग्य क्या करना चाहिए, वैराग्य क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, सभी के बारे में महाप्रभु लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। So out of many instructions Lord Chaitanya gave to Rupa and Sanatan Goswami to rediscover those lost places of worship of Lord Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Ram, Ram Ram, Hare. साक्षात रूप गोस्वामी के समाधि में पहुंच गए। So you all reached the samadhi of Rupa Goswami. तो इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने एक महाप्रभु जो लुप्त तीर्थ उद्धार करने के लिए थे, विग्रह का प्रकाश करने के लिए बताए थे। Also Lord Chaitanya asked them to establish the different deities in Vrindavan. तो ये जो श्री विग्रह है वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित है। এই তেন ঠাকুর গড়িয়া করিয়াছে আত্মসাৎ, এই তীরের চরণ বন্ধু तीन मोर नाथ। ये 3 ठाकुर कौन कौन सा है? मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। ये 3 ठाकुर गौड़िया आत्मसात किया। These three deities, Radha Madan Mohan, Radha Govind ji and Radha Gopinath, they are like the life and soul of the Gaudiya Vaishnavas. तो कृष्णदास कबीरदास कहते इन यही 3 चरण मंदिर 3 मोर नाथ, ये तीनों का चरण मैं वंदना करता हूँ, ये 3 मेरा नाथ है। Krishnadas Kaviraj Goswami says, I worship the lotus feet of these 3 deities and they are my life and soul. तो ये गोविंद देव के क्या पोजीशन है, कौन सा विग्रह है? अभिदेव। So Govind ji's position is Abhidev. तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शिक्षा देते हुए महाप्रभु जी कहते हैं, এই তো কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার, বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার। तो महाप्रभु जी 21 अध्याय मध्य लीला की 21 अध्याय सनातन की शिक्षा देते हुए कहते हैं, यही तो कहिलू, यही तो इसी प्रकार जो मदन मोहन के बारे में हमारा समुद्र तत्व, यही तो समुद्र तत्व सार। तो समुद्र तत्व का सार बताए, कृष्ण एक सार। In Madhya Leela 21st chapter, Lord Chaitanya taught Sanatan Goswami
about the Sambandha Gyan. कृष्ण एक सार, Krishna, where वेदों वेद शास्त्रों में उपदेश देते हैं कृष्ण ही एक सार वस्तु है। all the scriptures they teach us that Krishna is the essence. एबे कही अभिदयर लखन जहाँ होते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। तो अभी मैं अभिदय के बारे में बता रहा हूँ जिसके माध्यम से हम कृष्ण और कृष्ण प्रेम धन हमें प्राप्त होगा। Now I will be teaching about Abhidaya, by which we can get Krishna and Krishna Prem. ये तीन जो है, जो संबंध मदन मोहन है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, और जो कार्यों में कार्य कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे, कार्यों में आपको लगाएंगे जॉब में, ये है गोविंद देव। और जो पेमेंट देने वाले तीन अधिकारी अलग अलग है। पेमेंट देने वाले जो है ये कौन है? गोपीनाथ जी। जैसे तीन प्रकार का ये होते हैं जो मदन मोहन जी जो है। इंग्लिश Just like there are three different categories. The first one is Madan Mohan, so it teaches about the Sambandh Gyan, and the second one is Abhidaya. That means how to do the work or service, and the third one is how to get salary. That is Prayojan. तो इनके माध्यम से हमें कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, जो चैतन्य चरित्र 22 अध्याय में वर्णन है अभिधेय तत्व के बारे में। So like this in 22 chapter, in Chaitanya Charitamrita, it has been elaborately described about Avidya Tattva. तो ये गोविंद देव हमारा है जो हमारे सेवा में लगाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। Rupa Goswami has written the Nectar of Devotion. इसमें 64 प्रकार की जो भक्ति की सेवाएं है ये बताए हैं, In which there are 64 different items of devotional service has been described. इसमें से 5 महासाधन हैं। Out of that, 5 are very principal and important. किस किस को पता है 5 के बारे में? Who all knows about these 5 principles? बताइए। भागवत श्रवण, मुझे बार श्रद्धाए श्री विग्रह सेवन। तो रूप गोस्वामी 64 महाप्रभु बताए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, तो ये उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बताए। तो इसमें से 5 महासाधन हैं। So out of that 64 items in Nectar of Devotion, Rupa Goswami has described the 5 are principal items, which are called Mahasadhan. साधु के संग करना, The first one is association of devotees, चांटिक करना, chanting the holy name, भागवत श्रवण करना, hearing Srimad Bhagavatam and discussing, और हम मथुरा में रहना, हम लोग जल्द रहते ही है वृंदावन में, staying in धाम like Mathura or और Vrindavan, श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की अर्चन करना। and doing deity worship with full attention. तैसे प्रकार ये अविधेय तत्व है जिसको ये विधि को आप फॉलो करेंगे, अविधेय फॉलो करेंगे तो आपको राधा गोविंद देव ठाकुर जी आपके सामने ये विधि जो है तो आपके लक्ष्य वस्तु आपके सामने कर देगा। यही अविधेय है। If we follow these principles of Abhidaya, then we can reach the goal of our life. तब रूप गोस्वामी इसको गोविंद देव को ढूंढ कर नहीं मिल रहा था, तब वो वृंदावन में अलग अलग स्थानों में रोते थे, महाप्रभु की आज्ञा को मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे, हे प्रभु कृपा कीजिए। In Vrindavan, Rupa Goswami was searching for Radha Govindji, but he was not able to discover him. So that is why he was crying and crying, thinking that I am unable to execute the orders of Lord Chaitanya. तब कोई कहता कि ब्रह्म कुंड के तट पे बैठकर रो रहे थे, कोई कहते हैं कि यमुना जी के तट पर बैठ के रो रहे थे। Some people say Rupa Goswami was crying near Brahmakund. Some people say he was crying at the banks of Jamuna river. तब इनकी महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने के उत्कट इच्छाओं को देखकर, just seeing his intense desire to execute the desires of Lord Chaitanya, साक्षात गोविंद देव एक ब्रजवासी बालक बनकर आए। Lord Govinda Dev came in disguise of a cowherd boy. आकर बोला बाबा क्यों रहे हो? He asked Rupa Goswami, why you are crying?
तब रूप गोस्वामी ने कहा, महाप्रभु जी ने मुझे विग्रह प्रकाश करने के लिए कहा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? Rupa Goswami said, Chaitanya Mahaprabhu has ordered me to establish the deities of Krishna. I am unable to get them. What should I do? साक्षात गोविंद देव ब्रजवासी बालक के रूप में आकर एक गोमा टीला, जहाँ वृंदावन में गोविंद मंदिर है, गोमा टीला की ओर लेके आए। Lord Govindev, in form of a disguise of the cowherd boy, he brought Rupa Goswami to Goma Tila, near the Govind Ji Mandir. तो बोले कि देखना 11 बजे एक गाय आएगी, यहीं पे खड़ी हो जाएगी और उसके थन से अपने आप दूध झरने लगेगा। He told Rupa Goswami that exactly at 11 a.m. a cow will come and you will see milk will flow from the udder of the cows on this ये हर रोज आती है, सेम टाइम में हर रोज आती है। and this cow comes every day at the same time. तब आप इसके नीचे खोदना, इसमें गोविंद जी आपको मिल जाएगा। Then whichever place the cow is pour milk, so that area you dig, you will get the deities of तो कुछ Govinda. समय बाद वो बच्चे अंतर्धान हो गए। After that the boy disappeared. तो रूप गोस्वामी गांव के लोगों को बुलाकर पानी देकर गीला किया मिट्टी और धीरे धीरे खोदने लगे। Rupa Goswami gathered all the village people and he put water on the earth and he started digging that area. तब इसके बाद हमारा साक्षात गोमा टीला जो है वो एक्चुअली वृंदावन के रत्न सिंहासन है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। सारा वृंदावन की जो रत्न सिंहासन वही बिल्कुल गोमा टीला में ही है। So the Ratna Singhasan of Vrindavan is in Govind Tila. गोमा टीला। Goma Tila. तो जब इसे खोदाई करते करते गोविंद देव मिल गया तो बोले सभी बहुत खुश हो गया, जय गोविंद देव भगवान के। तो गोविंद देव प्रकट हो गए और आनंद की और खुशी की और सीमा ना रहा। So when after digging that place they got Govindji, everybody become very jubilant and happy. तो उसके बाद अभिषेक, आप बहुत सुंदर से अभिषेक आदि करके उनके प्रकट किए और सेवा शुरू कर दिए। After that they did Abhishek and they started the service. तो गोविंद देव का प्रकट हो गया और ब्रह्मकुंड से हमें वृंदावन देवी प्रकट हो गई। और And जब Vrinda Devi was manifested near Brahmakund. तो जब लेके पहले आप जानते हैं मंदिर बना दिया, मान सिंह ने विशाल मंदिर बना दिए थे, औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर तोड़ा, उसके बाद और भी हिंदू मंदिर ढूंढ रहे थे तो गोविंद देव से हटाकर राधा कुंड लाया, राधा कुंड से कामवन में लेके आए जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। साक्षात गोविंद देव जी इधर आके रहे। So after that Man Singh built a very wonderful temple for Lord Govind Dev, but then Aurangzeb attacked all the temples in Vrindavan. He broke all the temples and then Lord Govind Dev was shifted from Vrindavan to Kamyavan through Radhakund, then Kamyavan, in particular this place. और कामवन से कुछ दिन बाद गोविंद देव जितने ठाकुर, गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा गोकुला, राधा विनोदी लाल, राधा माधव, सभी चले गए। So after some time, all the deities like Radha Madan Mohan, Radha Govindji, Radha Gopinath, Radha Vinodji, Radha Damodar and Radha Madhav, all they went from Kamyavan. लेकिन वृंदा देवी गई नहीं। तो ये साक्षात जो है रूप गोस्वामी के समय से बहुत पुराने बद्रीनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित जो श्री वृंदा देवी एक ही साक्षात विग्रह है, और कृष्ण के तो अलग अलग हजारों विग्रह, वृंदा देवी की इतनी नहीं है, और पुराने समय की जो श्री विग्रह है ये हमारा सामने प्रकट है। तो वृंदा देवी के दर्शन करके वृंदा देवी को कृपा लेकर हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए हम लोग खाने पीने चलने फिरने आने में क्राउड में समय चला जाता है, कथा की समय नहीं होती है। So out of all the deities, all they left except Vrinda Devi. This is the original deity which is carried by Bajranath. So all left except Vrinda Devi. So now we are in front of Vrinda Devi. We are very fortunate, and Maharaj is telling
we are busy in eating and only traveling, but there is no time for Krishna Katha. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि वे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि वे। हरे कृष्णा। तो आज हम जो हैं अभी आप बोलेंगे ना, तो काम्य वन हम आए हुए हैं और ये काम्य वन 12 वनों में से चौथा वन कहलाता है। So you all have come to Kamyavan. So out of 12 forests, it is the 4th forest. बराह पुराण में कहा गया है चतुर्थकम काम्य वनम वनानां वन उत्तमं तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। तो बराह पुराण में कहा गया है चतुर्थकम काम वनम, जो 12 वन हैं उनमें चौथा वन काम वन है, और वनानाम वनम उत्तमम, और ये सबसे टॉप मोस्ट वन है। In Varaha Puran, it has been said that the Kamyavan is the 4th in the 12 out of 12 forests, and it is the topmost forest amongst the 12. तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। जो भी इस वन का दर्शन करता है, ये बिल्कुल सत्य है, वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। So it is definitely true that whoever have darshan of this forest, he will attain the abode of the Lord. स्कंद पुराण में कहा गया है ततः काम्य वनम राजन यत्र वाले स्थितो भवान स्नानम मात्रेण सर्वेषां सर्व काम फल प्रदाम। तो वहाँ पर कहा गया है कि ततः काम्य वनम राजन, ये जो काम्य वन है बोलते हैं यत्र वाले स्थितो भगवान। बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रुके भी, और क्योंकि माता यशोदा का घर भी जो है यहीं था, और उस समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते थे अपने नाना के घर। So it is said in Skanda Puran
that while Lord Krishna was a child, he used to stay here with Mother Jasoda. So practically the Mother Jasoda's house is here in Kamya. Nandagam, yes, mother, father. The father of Mother Jasoda, this is her house here. तो स्नान मात्रेण सर्वेशाम, यहाँ कोई स्नान करता है, अभी विमल कुंड में हम स्नान करेंगे, उसकी महिमा भी बताएंगे, अद्भुत महिमा है विमल कुंड की. So whoever takes bath in this forest, just like Vimal Kund, where we will go and take bath, so it has wonderful glories. तो स्नान मात्रेण सर्वेशाम सर्व काम फलप्रदम, जो भी विमल कुंड में स्नान करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी. So whoever takes bath in Vimal Kund, all his desires will be fulfilled. तो इसका नाम है, इस वन का फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट नेम इज काम्य वन. So this forest name is Kamya Van. काम्य वन मीन्स प्रेमैव गोप रामाणाम कामः इत्यागमतः प्रथम. जो काम यहाँ पर कहा जा रहा है, वास्तव में वो काम गोपियों के प्रेम को काम कहा जा रहा है. Here whatever is mentioned as Kam, actually it is the prem of the gopis. तो कहा जाता है कि जो काम्य वन है, ये व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं को तो पूरा करता ही है, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, जिसको भगवान ने अनंत अनंत काल तक वितरण नहीं किया था, वो प्रेम इस काम्य वन में आसानी से मिल जाता है. This Kamya Van can fulfill the material desires, but not only that, it can give us Krishna Prem, which has not been given at any point of time. This is the glories of Kamya Van. अदर जो है ग्लोरीस, काम्य मतलब, काम्य शब्द का मतलब होता है अत्यंत सुंदर. The other meaning of Kamya Van, Kamya means very beautiful. सुशोभित, सुशोभित का मतलब शोभायमान, सुंदर. It is very very beautiful and it is fully decorated. तो ये जो वन हैं, जो कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर थे, इस वन के जो है अनेक अनेक प्रकार के सुरम्य सरोवर थे, जिनका पानी निर्मल था. While Lord Krishna was doing his pastimes on this earth, that time there were many lakes in this forest, and it was the water was very crystal clear. और सारे सरोवर कमल फूलों से भरे थे. लाल हैं, नीले हैं, पीले हैं और श्वेत वर्ण के कमल. So all the ponds were full of lotus flowers of different colors like white, yellow, red and blue. अनेक कूप थे यहाँ पर, सुंदर सुंदर कूप. कूप मतलब वेल. There are many wells in this forest. यहाँ के जो वृक्ष थे, लताएं थीं, फल फूलों से लदी हुई थी. All these trees and creepers of this forest are full of fruits and flowers. हर सीजन का, 12 महीने का सीजन का, हालांकि गर्मी के सीजन में पतझड़ होता है, लेकिन यहाँ हर समय बसंत रहता था. Every time it was a spring season here. और जो है यहाँ पर जो पक्षी थे, कूंजत कोकिल हंस सारस गणा कीड़े मयूराकुले, अनेक अनेक प्रकार के जो है पक्षी हैं. मयूर है, मयूर आवाज करते थे क्यों क्यों क्यों. और जो है कोकिल है, कोकिल आवाज करती थी. हंस है आवाज करते थे ट्र ट्र. मैंने यह जो है पक्षी कलरव करते थे, आनंद से झूमते रहते थे. There are many birds here, just like peacocks. They were making very wonderful sound, and the cuckoos, they were also making various sounds, and saras and so many other birds, they were making very wonderful sounds. और हर समय यहाँ मंद सुगंध और क्या नाम है, मंद सुगंध और सुशीतल, ये जो हवा जो
टॉप मोस्ट हवा है उसकी 3 क्वालिटी होती है, मंद, सुगंध और सुशीतल, न अधिक ठंडी न अधिक गर्म। The breeze which was flowing, it was very cool, very pleasant, and very full of good odors. तो ये हर समय यहाँ पर बहती रहती थी। It was flowing all the time. और ये जो है स्थान विशेष करके काम्यवन भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं का स्थल है। This Kamyavan is a very great place of the various pastimes of Lord Krishna. विष्णु पुराण में कहा गया है यहाँ 350 तीर्थ हर समय 24 घंटे वास करते हैं। It is mentioned in Vishnu Puran that 350 tirthas, they always reside in this forest. कैसे प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के जो माता पिता थे उनकी इच्छा हुई कि भाई अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमें तीर्थों के लिए गमन करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे पिताजी आपकी वृद्धावस्था है, हे माता अब आप कहाँ जाओगे, तुम्हें सारे तीर्थों के ही दर्शन करना है तो मैं सारे तीर्थों को यहीं बुलाता हूँ। और भगवान ने ब्रह्मांड के सारे तीर्थों को आमंत्रित किया और सारे तीर्थों को आमंत्रित करके इस काम्य वन में सबको बास दिया। इसलिए सारे तीर्थ ब्रह्मांड के इस काम्य वन में बास करते हैं। One time, Lord Krishna's parents, Nanda Baba and Mother Jasoda, they wanted to visit different pilgrim places. बाद में वो जयपुर चले गए। Just like Govind ji, he was also staying here. Later on, he moved to Jaipur. गोपीनाथ भी जयपुर चले गए। Also, Lord Gopinath, he was staying here and he also moved to Jaipur. मदन मोहन करौली चले गए। And Madan Mohan, he was staying here and he moved to Karauli. राधा माधव वो भी जयपुर चले गए। And Radha Madhav ji, he was staying here and he went to और Jaipur. जो है राधा दामोदर वो भी जयपुर चले गए। Radha Damodar ji also, he went to Jaipur. और श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए। And Srinath ji from here, he went to Nathdwar. लेकिन वृंदा देवी ने कहा मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। But Vrinda Devi said, I will never leave this Braj. क्योंकि वृंदा देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए तो वृंदा देवी के नाम से इस भूमि का नाम वृंदावन है। Because Vrinda Devi was the presiding deities of Vrindavan, by whose name this land is called Vrindavan. वृंदा देवी समेताय गोविंदाय नमो नमः, मुक्ति रूपाय कृष्णाय वासुदेवाय केलिने। तो यहाँ पर जो है वृंदा देवी और भगवान श्री कृष्ण को गोविंद को नमस्कार किया गया है। वृंदा देवी समेताय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद और वृंदा देवी को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं भाई? क्या खासियत है उनमें? उनमें ये खासियत है कि मुक्ति रूपाय कृष्णाय, जो कृष्ण जो है मुक्ति देने वाले हैं। मुक्ति का मतलब यहाँ ब्रह्म ज्योति नहीं, वैकुंठ लोक या गोलोक देने वाले हैं। ऐसे वासुदेव केली रूप है। यहाँ भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं संपन्न की है। We pay our obeisances to Govinda Dev and Vrinda Devi because Krishna is called Mukti Dada. He can give liberation. But here, liberation means what? वैकुंठ गोलोक, Vaikunt, not the Sajujya Mukti, but the other, the Sasti Salokyan Sarupe Mukti. इसलिए इस काम्य वन में पांडव इधर आए, 5 पांडव यहाँ उन्होंने वास किया। The 5 Pandavas also came here to Kamyavan and they were residing here. भीम की जो पत्नी थी हिडिंबा, उसका बर्थ प्लेस भी काम्य वन है। The wife of Bhim, called Hidimba, this is her native place. इसलिए जब पांडव इधर आए तो सबसे पहले उन्होंने जो है घटोत्कच से मुलाकात की। भैया कहाँ रहना है, हमें 12 साल रुकना है, स्थान बताओ हमारे लिए। So when these Pandavas came here, they asked Ghatotkacha, where we will stay here in Kamyavan. घटोत्कच जो है हिडिंबा का पुत्र है, तो इधर ही था वो।
Ghatotkacha was the son of Hidimba. सुभद्रा माता सुभद्रा भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा इधर आई, इसलिए यहाँ सुभद्रा कुंड है। So here also the sister of Lord Jagannath, Subhadra Devi, she also came here. That's why there is Subhadra. Lalita and Vishaka also came here, by whose name there are many ponds out here. कर्ण इधर आए, Karna दुर्योधन इधर आया। Karna and Duryodhan also came here. तो इस प्रकार जो है ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर जो है 84 कुंड हैं, 84 So it is said that there are 84 kundas 84 मंदिर, and 84 temples, 84 जो है खम्बे, 84 pillars. और जो है इसलिए टोटल यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि 350 तीर्थ नित्य वास करते हैं। So altogether it is said that 350 pilgrimages they reside here. तो अभी हम चलते हैं बिमल कुंड पर, So now we'll move to Bimal इसके Kund. बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन बिमल कुंड से चलते हैं हम। So now we'll go to Bimal Kund. There Maharaj will tell तो about पहले Bimal Kund. बिमल कुंड को नमस्कार करते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो ब्रज भूमि है ना, ये साधारण भूमि नहीं है, जिसमें श्रीपाद शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में। बोलो। This Brajbhumi is not ordinary land. Lord Shankaracharya, who was preaching this cult of bhakti throughout the world, वो उस समय आए थे तो उनका कुछ वो नियम था कि जहाँ भी वो जाते थे पहले उस स्थान को खुदाई होता था, फिर उस पर जो है लेप होता था, फिर पानी छिड़का जाता था, फिर गाय के गोबर से लेप करते थे, उसके बाद उनका आसन लगता था। so wherever he used to go, they used to clean this place and they used to apply cow dung and they used to put the cloths. Then he used to sit and give his. जैसे जैसे वो वृंदावन की तरफ जब बढ़े तो उन्होंने जो है फिर धीरे धीरे करके वृंदावन की सीमा के नज़दीक आए, उन्होंने खुदाई करना बंद कर दिया, केवल पानी छिड़को, गोबर लगाओ और आसन लगा दो। So as he approached near Vrindavan, he stopped digging this place just by applying cow dung and putting water and putting cloth. That was enough. थोड़ा और वृंदावन के नज़दीक आए, उन्होंने जो है खोदना तो बंद किया, साथ साथ में काऊ डन भी बंद कर दिया, बस पानी छिड़को, आसन लगा दो। So as he become closer to more and more close to Vrindavan, he stopped also digging. Not only digging, also he stopped applying this cow dung. He just sprinkled water and put cloth. लेकिन जैसे ही बॉर्डर पर आए, उन्होंने जो है खुदाई बंद किया, काऊ डन बंद किया, छिड़काव भी बंद किया, बस सीधा सीधा आसन लगाओ, गुरुजी बैठ जाते थे। So as he become more closer to Vrindavan, he stopped digging, putting cow dung, sprinkling water, just putting asan and sitting. लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रजभूमि में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही गुरुजी उस रज में लोटपोट होने लगे। As soon as he entered Brajadham, he stopped everything. He just started rolling on the ground of this Braj. शिष्यों ने पूछा, गुरुजी पागल हो गए हो क्या? The disciples asked, Guru Maharaj, have you become mad? गुरुजी ने कहा, रे मूर्खो, ये रज नहीं है, ये ब्रह्म रज है, स्वयं ब्रह्म इसमें लोटपोट किए हैं, ये कोई साधारण रज नहीं है। Shankaracharya said, you fools, this is not just ordinary sand. It is Braj-raj. It is Brahmaraj. Brahmaraj. It is transcendental. Yeah, the Lord Brahma means Lord Raj. This Lord is rolling is here. That Raj. Yes. Yeah, it is called Brahmaraj. That means Lord was rolling himself here, Krishna. तो ये जो ब्रजभूमि है जिसके लिए देवता भी इस रज के लिए, आप जानते हैं ना, जब देवता इस संसार में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, 8 फुट 7 8 फुट पृथ्वी से ऊपर रहते हैं। When demigods come to this earth, their foot doesn't touch the ground. They remain few foot above the ground. लेकिन जैसे ही वो ब्रज में आते हैं, वृंदावन 8 फुट ऊंचे नहीं, 8 फुट नीचे चले जाते हैं रोलिंग करते करते। But when the demigods come to Braj, they go inside the sand of Vrindavan, few feet. इसलिए ये जो ब्रज, ये वृंदावन, ये काम्यवन, ये ब्रजभूमि का ऐसा कहा जाता है, यदि कोई धाम में कोई शरण लेता है और यदि किसी प्रकार वो जो है काम क्रोध ईर्षा भी उसके अंदर है, बोलो,
whoever takes shelter of Braj Dham, even if he has lust, greed and anger in his heart, हाँ, तो ये ब्रजभूमि क्या करता है, उसके काम क्रोध आदि को न देख करके बिल्कुल उसको चट कर जाता है, उनकी सारी गंदगी को चाट जाता है। what this Braj Bhumi does is, it removes all these unwanted things like lust, greed and anger from his heart. और उसको जो है भगवान शुद्ध करके और भगवान के पास भेज देता है। And it purifies the heart and sends him back to Godhead. इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है जो है अयोध्या के अंदर जो माता सीता की निंदा किया था, तुम रावण के यहाँ इतने महीने रही, 3 महीने हम तुझे नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुष के यदि कोई स्त्री रहती है फिर उसे हम एंट्री नहीं देंगे। So what is the proof in Ramayana? As we know, the washerman, he blasphemed Lord Ramchandra, saying that Mother Sita was kept with Ravan for so many years, then for so many months. So then, then normally those kind of women are not allowed to enter the family again. लेकिन वो ही वो निंदक धोबी अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, मम धामतात पुरी सुख राशि। यहाँ का एक कुत्ता बिल्ली भी मेरा हार्ट है, मेरे प्राण हैं, और मम धामदापुरी सुख राशि, और ये निश्चित है 100% गारंटी है वो सारे के सारे मेरे धाम में जाएंगे। Even the dogs and cats of this place, they are so dear to the Lord and they are so pure that they will go back to the abode of Lord Ram. इसलिए बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, जो है यहाँ का जो कभी कभी हम सोचते हैं भाई पानी नहीं है क्या करें, ब्रज रज से भी काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ की जो ब्रज रज है, कहा जाता है वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज। यहाँ पर जो है हर एक पत्रे पर, एक जो है टहनी पर वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक एक वृक्ष पर वास करते हैं, क्योंकि कन्हैया ने एक एक वृक्ष का पर्सनली आलिंगन किया है यहाँ के ब्रज के वृक्षों का। It is said that there is no water here in Braj, but Lord Krishna personally embraced each and every tree of this place. So they are not ordinary trees. They are और पत्रे पत्रे चतुर्भुज, हर एक पत्ता पे तो जो है भगवान विष्णु चतुर्भुज बैठे रहते हैं। On each and every leaves of these trees, Lord Vishnu is residing. यत्र वृंदावनम तत्र लक्ष्य अलक्ष्य कथाकुतम। अरे भाई, ये जो वृंदावन धाम में है, यहाँ लक्ष्य अलक्ष्य कथाकुतम। अरे भाई, मैंने पानी नहीं है, हाथ नहीं धोए हैं, प्रसाद कैसे पा सकता हूँ? ये ब्रजरज, इसकी जो ब्रजरज है इतनी ट्रांसेंडेंटल है कि जो है आप कितने भी पापी क्यों न है, इस रज में लोटपोट कर लो, उसी समय सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हाथ धोने की तो बात ही दूर है। Normally, it is said that one has to wash the hand before honoring prasadam. But this Braj is so pure that just by touching it, all the sins get removed and one becomes very pure. इसलिए कहा जाता है जलात अपि रजः पुण्य, जल से भी यहाँ की रज पुण्यवान है। जहाँ जल नहीं है, रज लो भैया और हाथ में मलो, थोड़ा सर पे मलो, 100.1% आप प्योर हो गए, आप शुद्ध हो गए। So this Braj is more pure than the water. Just by applying it on the body, one become fully purified. तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जलात अपि रज पुण्यम रजसो अपि जलहवरम, और जहाँ जल है रज नहीं है तो वहाँ रज की बड़ी, जल की बहुत महिमा है, वो पवित्र है। यहाँ ब्रज, इस ब्रज का कोई भी कुंड ब्रह्मांड के सारे शुभों को दे सकता है, सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और सारे पापों को खत्म कर सकता है। The water of any of these kundas residing in this forest can fulfill all the spiritual desires. इसलिए यहाँ पर यत्र वृंदावनम तत्र स्नात स्त्वा कथा कुतः,
यदि ब्रज में स्नान किया है कि नहीं किया है कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन हमें थोड़ा रखना ही चाहिए, वैसे कोई वैल्यू नहीं रखता है। यदि आप ट्रांसडेंटल उसमें जाएंगे तो रत्ती भर भी कोई नहीं है। ये ब्रज रज ही उसको स्नान क्या सारे तीर्थों का स्नान का फल दे देती है ब्रज रज। हरी हरी बोल। Even one doesn't take bath in the ponds of this Braj, it doesn't matter. But the Braj Raju itself is so pure that it gives all the results of taking all the baths. इसलिए यहाँ पर जो विमल कुंड है, एक बार सब हाथ जोड़ो, प्रणाम कर लो, बाद में वहाँ करना। बोलो वैमल्य वैमल्य रूपणे तुभ्यम रूपणे तुभ्यम नमस्ते नमस्ते जलसायिने जलसायिने केशवाय केशवाय नमः तुभ्यम नमो तुभ्यम तीर्थराज तीर्थराज नमस्तुते नमस्तुते। तो ये जो है ये प्रणाम मंत्र है, इसमें कह रहे हैं कि वैमल्य रूपणे तुभ्यम नमस्ते जलसायने। ये जो विमल कुंड कैसा है, ये विमलता बेमलता, जहाँ बिल्कुल भी रक्ति भर भी स्पॉट मात्र भी मल नहीं है इसमें। This Bimal Kund is so pure, there is not even a tinge of impurity in this. और नमस्ते जलसायने केशवाय, इस जल में क्या है, भगवान श्री कृष्ण नित्य वास करते हैं। So Lord Krishna resides in this water of this Bimal Kund eternally. तो तुभ्यम तीर्थराज नमस्तुते, इसलिए इसको कहा जाता है विमल कुंड को तीर्थराज, सारे तीर्थों का किंग ऑफ ऑल तीर्थ। That is why Bimal Kund is called the king of all the tirthas. इसलिए उसको हम नमस्कार करते हैं। That's why we should pay obeisances to Bimal Kund. इसकी एक कथा है, अब ध्यान से सुनो विमल कुंड की। There is a very nice story about this. Kindly hear attentively. तो जो चतुर्मास होता है, चतुर्मास में सारे तीर्थ ब्रज में आते हैं और विशेष करके पुष्कर भी इस ब्रज में आता था। So during Chaturmasya, all the tirthas they come to Braj, and also Pushkar used to come to this place. तो क्योंकि एक बार क्या हुआ, चतुर्मास में पुष्कर ने कहा हम नहीं जाएंगे। One time it happened so, during Chaturmasya, Pushkar Tirtha said, I will not come to Braj. भगवान श्री कृष्ण को ये जो काम्य वन है ना, हार्टली लाइक, मतलब उनको हृदय से पवित्र, इसको प्रिय है भगवान को, क्योंकि बहुत सुख देता है भगवान को ये काम्य वन। This Kamyavan is very very dear to Lord Krishna. इसलिए भगवान को जब पुष्कर राज ने यहाँ काम्य वन में आने की अवज्ञा कर दी, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को याद किया। When Pushkar Tirtha refused to come to Braj, Lord Krishna remembered Yogamaya. और जैसे ही योग माया को स्मरण किया, योग माया इस जमीन को फाड़ करके पहले जो है एक जल प्रवाह फुहारे के रूप में प्रकट हुआ जल। So as soon as Lord Krishna remembered Yogamaya, so the earth become divided, and from which this Yogamaya become manifest in form of water. और उसी समय उसी जो है जल के फुहारे से एक कन्या निकली उस। So that time one beautiful girl, it manifested from this water. जो अति सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न थी। That girl was very beautiful and full of all good qualities. और भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या के साथ में अनेक प्रकार से जो है विहार किया। Lord Krishna did many transcendental pastimes with that girl. और उस कन्या ने जो है अपनी जो है निर्मल प्रेम से भगवान की सेवा करके भगवान को खूब संतुष्ट किया। That girl with a very pure heart, she served Lord Krishna and pleased Lord Krishna. इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा तुम्हारा नाम विमला होगा। बोला विमला देवी के। Lord Krishna was very much pleased, and then he said, your name will be Bimla. और चूंकि ये कुंड भी मुझे जैसे तुम प्रिय हो, जैसे राधा कुंड के बारे में कहा,
जैसे राधा रानी मुझे उतनी प्रिय है, ऐसे मेरा कुंड, ये राधा कुंड भी मुझे ऐसे ही प्रिय होगा। ऐसे कहा जैसे तुम मेरे को बहुत प्रिय है, ऐसे ही इस कुंड का जो प्रपात निकला है, इस जल का नाम होगा बिमल कुंड के। Just like Krishna said to Radharani, this Radha Kund will be as dear as to me as you are dear to me. और हाँ ठीक है। Similarly, here Krishna told Bimla Devi that this water of this Bimla Kund will be as dear to me as you are dear to me. और उन्होंने उसी समय घोषणा की, जो भी इस बिमल कुंड में स्नान करेगा उसे पुष्कर से 7 गुना बढ़कर के अधिक फल मिलेगा। Hari Bol. So that time Lord Krishna declared boldly that whoever takes bath in Bimal Kund, he will get 7 times more spiritual benefit than taking bath in Pushkar. इसलिए इस कुंड के पास में बहुत सारे ऋषि हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए असंख्य कई सारे ऋषि वास किया करते थे और करते हैं। So there used to be many great sages who used to live at the bank of this Kund to achieve Lord Krishna. तो एक कथा ये कोई, दूसरी कथा और है। There is another story about this. तो ये जो है पूर्व काल में कृष्णा अवतार से पहले, So before Lord Krishna's advent here, तो सिंधु देश जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ चंपक नगरी में, so in Sindhu Desh, currently called Pakistan, there is a place called Champak Nagari. वहाँ एक राजा रहते थे जिनका नाम था बिमल। There was a king called Bimal. वो बिमल क्या थे? महान भगवान के भक्त थे, हैं, बड़े ही दानी थे, पुण्यात्मा थे, और वो दूसरे प्रहलाद की तरह थे। So that King Bimal was a very pious king. He was as good as Prahlad Maharaj, and he was a great devotee of Lord Krishna. उनके 6000 पत्नियां थीं। He had 6,000 wives. लेकिन आश्चर्य ये था कि किसी के भी कोई संतान नहीं थी। But it was very wonderful that they didn't have any children. It was a surprise. इसलिए राजा बिमल थोड़ा दुखी रहते थे। That's why Bimal, King Bimal was very morose. हालांकि उनका ऐश्वर्य देवराज इंद्र की अमरावती को मात करता था, Though his opulence was more than Lord Indra, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई संतान न होने के कारण अंदर से बहुत दुखी थे। because he had no children, he was internally very unhappy. एक बार याज्ञवल्क ऋषि वहाँ आए। One time, Yajnavalkya says he came there. जो है क्या नाम है, बिमल राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। King Bimal, he greeted the sage very properly. उच्च आसन उनको प्रदान किया। He gave him a very nice seat to sit on. उनके चरणों में बैठ करके और चरण हाथ में लेकर के धीरे धीरे सहलाने लगे। He sat at his lotus feet and he started massaging his lotus feet. याज्ञवल्क ऋषि ने पूछा, महाराज सब ठीक ठाक तो हैं? The sage Yajnavalkya asked to Bimal, King Bimal, that is everything all right here? उन्होंने कहा, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन महाराज कोई संतान नहीं है जो हमारे वंश को कैसे आगे बढ़ाएगी। So the king said, by your blessings everything is all right here, but since I don't have a child, how our progeny will move on? और बिना संतान के हैं जो हमारा कर्म है, कर्म का जो फल है, दूसरा पितरों का जो ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषि ऋण है, महाराज वो कैसे हम उससे उऋण होंगे। So without a child, how will be delivered from the various kinds of debts like Pitrin, Devarun, Nirirun and all these things? याज्ञवल्क्य ने कहा, महाराज जैसे मैं देखता हूँ आपके पुत्र तो है नहीं। So says Yajnavalkya said, as I see you don't have any child, बट आपके जो है करोड़ों कन्याएं होंगी, but you will have crores of daughters, जो बहुत ही सुंदर होंगी और जो है क्या नाम गुणवान होंगी और दक्ष होंगी, हर कार्य करने में दक्ष रहेंगी। they will be not only very beautiful, they will be full of good qualities and they will be very expert in all the activities. इसलिए तुम क्या करना, आज से लगभग 115 साल वर्ष पहले मथुरा में
भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, उस समय तुम अपनी कन्याओं को उनको दे देने का। So what you have to do is, when Lord Krishna will appear in Mathura, you have to give all your daughters to Lord Krishna. और उससे क्या होगा, तुम्हारा सब ऋण मुक्त हो जाएंगे और आप भगवान को भी प्राप्त करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। So by that what will happen? You will be not only free from all your debts, but also you will achieve the lotus feet of Lord Krishna. उन्होंने कहा, महाराज मैं कैसे पहचानूंगा कृष्ण ये है? So King Bimal asked, how will identify who is Krishna? तो उन्होंने उनका परिचय दिया, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम बैजयंती चमालम रंध्रान वेणो अदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणा प्राविशत गीत कीर्ति। उन्होंने परिचय दिया, भाई वो बच्चा होगा बरहा पीड़म, मोर मुकुट धारण किए रहता है। So the sage said, this child will have this peacock feather on his head. और उनका जो शरीर है वो क्या है, नटवर, जस्ट लाइक ए कलाकार, कोई एक्टर हो। So his body will be just like a dancer. और कर्णयो कर्णकारम, कानों में है मकराकृत कुंडल जो हीरे और मोतियों से झिलमिल करते रहते हैं। And he will wear karnakar on his flower on his ear. और पीत वस्त्र धारण करते हैं। And he will wear a yellow garments. और जो है वस्त्र कैसे हैं, वस्त्र इतने जो है शाइनिंग मारते हैं जैसे कोई आकाश में बिजली कौंद रही हो। His cloth will be so much shining as if it is lightning in the बाल sky. हैं घुंघराले हैं और रेशम की तरह सॉफ्ट है। And his hair will be very soft and it will be curly. आंखें कैसी हैं, कमल की तरह, खिले हुए कमल की तरह उनकी मोटी मोटी आंखें हैं। His eyes will be just like lotus petal. और जो है छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। He will have Srivastha mark on his chest. और श्याम वर्ण है। He will be a blackish color. और उसको पहचानने के लिए जैसे असंख्य ताराओं में चंद्रमा की तरह दिखाई देंगे वो। He will look like a moon amongst many stars. इसलिए बस इस प्रकार कह कर के याज्ञवल्क्य ऋषि चले जाते हैं वहाँ से। Just after telling this, says Yajnavalkya left that place. कालांतर में समय आया और जो है बिमल राजा के करोड़ों कन्याएं हुई। So as time passed away, so the King Bimal had many daughters. समय के अनुसार बड़ी हुई और अब जो है शादी के लायक हुई। And all of them grew up and they become of marriageable age. बिमल राजा ने अपने दूत को भेजा कि जाओ मथुरा में पता करो कृष्ण नाम का व्यक्ति जो है प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है या नहीं। So King Bimal sent his spy to Mathura to check whether Lord Krishna has appeared or not. लेकिन उसी समय जो है मथुरा में गए, उन्होंने पूछा भाई इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, तो सब ने कहा चुप, क्योंकि सबको कंस का भय था, कहीं कंस को मालूम चल गया तो ये तो मरेगा, हमें भी हरिबोल होगा, तो इसलिए किसी ने कुछ उनको जवाब नहीं दिया। So when the spies they went to Mathura and they asked the people in Mathura whether Lord Krishna has appeared, nobody opened their mouth out of fear of Kansa. They thought that not only this spy will be killed but also they will be killed. इसलिए किसी ने कोई जवाब न दे करके जो है, और वो जब लौट करके आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सेम गोप बालक के रूप में उसको दर्शन दिए। So when the Dutas they are coming back to Kamyavan, so Lord Krishna personally gave darshan to them as the Gopa Balak form. सेम चीज आकर के उन्होंने बिमल राजा से कह दिया कि महाराज इस प्रकार जो है हमने पूछा लेकिन पता किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने एक अद्भुत बालक को जरूर देखा है जो भूतो न भविष्यति। So the spies they came back and informed King Bimal that they could not gather any information, but they saw a very transcendental boy on the way and they described his beauty. उसी समय भीष्म पितामह यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ के लिए दिग्विजय करते हुए और यहीं जो है क्या नाम है सिंधु नरेश के यहाँ आए। So that time Bhishmadev he also came here to Kamyavan after doing which Yajna Maharaj? काम्यवन नहीं, जो है क्या नाम चंपक नगरी सिंधु प्रांत, Sindhu Prant. या विजय करते हुए After doing Digvijay. दिग्विजय मतलब
winning I mean, all the directions. Yeah. He तो- conquered all the directions. Yeah. तो उस समय जो है उन्होंने जो है क्या नाम है पितामह भीष्म से पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे याज्ञवल्क्य ने कहा, उसको हम कैसे जानेंगे, कहाँ है वो बच्चा? So that time King Bimal asked Bhishmadev. क्योंकि भीष्म एक महाजन है और भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की जानते हैं वो। So he asked how will identify Krishna, because Bhishmadev was also Mahajan, so he knew all these past, present and future. उस समय उन्होंने कहा कि इस समय भगवान श्री कृष्ण काम्य वन में हैं, क्योंकि उस समय जन्म लेकर के गोकुल गए थे और गोकुल से जो है वहाँ रह रहे हैं और काम्य वन में वो क्या करते हैं, अपने सखाओं के साथ में अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। So that time Bhishmadev informed them Lord Krishna has appeared in Gokul, but he comes to Kamyavan and he does various pastimes with his cowherd boys in Kamyavan. दूत जो है उसी समय बिमल राजा ने दूत को यहाँ काम्य वन भेजा और भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई और सारी स्थिति उन्होंने बता दी। And that time King Bimal he sent the spies to Kamyavan where they met Krishna and told all these events. उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुना, उन्होंने कहा चलो अभी हम चलते हैं, और आकाश मार्ग से जो है उनका दूत और भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर बैठ करके सीधे जो है चंपक नगरी पहुंच गए। So that time Lord Krishna mounting in on Garuda with these spies he came to Champak Nagari. और उस समय बिमल महाराज ने अपनी सारी कन्याओं का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। So that time King Bimal he got all his daughters married to Lord Krishna. एक कन्या कौन थी? ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये वो ही कन्या थी जिस समय भगवान प्रभु श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में रह करके और राज्य चला रहे थे। उस समय अयोध्या की असंख्यों जो कन्याएं थीं वो प्रभु श्री राम को पति रूप में इच्छा करती थी। So these daughters were not ordinary daughters. They were non different from the various women of Ayodhya who wanted to have Lord Ramchandra as their husband. हाँ, तो इसलिए उनकी जो है इच्छा थी है कि प्रभु श्री राम को हम कैसे प्राप्त करें, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया भैया इस अवतार में नहीं, कृष्ण के अवतार में नो प्रॉब्लम। So when they desired in Tretaya Yug to have Lord Ram as their husband, so Lord Ramchandra said it is not possible. So but in Krishna Leela it will be possible. और इस प्रकार उन्होंने जो है दहेज के रूप में अपना सारा राज्य उनको दे दिया। So he gave as dowry the entire kingdom, his kingdom. मैं क्लास दे रहा, हाँ, सारा राज दे दिया और यहाँ तक अपने को भी समर्पण कर दिया। And he gave himself. उसी समय जो है आकाश मार्ग से दिव्य विमान आया और चंपक महाराज बिमल महाराज उस और उनकी पत्नियां सब विमान पर बैठ करके और भगवत धाम चली गए। So that time a celestial aeroplane came from the sky and King Bimal with his queens and all the family members they went back to और God. भगवान श्री कृष्ण सारी रानियों को लेकर के यहाँ काम्य वन में आए। And Lord Krishna came to Kamyavan with all his queens. तो काम्य वन है जिनकी कामनाएं अधूरी पड़ी थी, लेकिन जिनकी भी कामनाएं अधूरी हैं उनके कामनाओं को यहाँ 100.1% गारंटी है पूरी हो जाती हैं। So whoever desires are unfulfilled, if they come to Kamyavan, 101% their desires will be fulfilled. तो वो जो सारी कन्याओं को भगवान यहाँ लेकर के आए काम्यवन में, और उन्होंने भगवान ने जो है उन कन्याओं के साथ में फिर रास लीला संपन्न किया। So Lord Krishna brought all these crores of daughters of King Bimal and he made Ras Leela with them. अनेक प्रकार से उनको आनंदित किया। He gave in various ways different pleasures to them. तो कन्याएं जो हैं आनंद में भाव विह्वल हो गईं। So all these girls were become very very much yeah, they were happy. जिससे जो है उनकी आंखों से प्रेम के अश्रुपात हुए। And they shed the tears of Krishna Prem from their eyes. उसी प्रेम से जो है उनके आंसुओं से एक कुंड बना है जिसका नाम है बिमल कुंड की। So from the tears which accumulated from the eyes of those daughters of Bimal, King Bimal, this kunda water came. और इस बिमल कुंड के बारे में कहा जाता है, एक कथा आती है गर्ग संहिता में, बिमल कुंड के बारे में कहा जाता है हाँ बिमलस्य, इसके जो है
जो विमल कुंड के बारे में कोई कहा जाता है कि विमलस्य कुंडे तो सर्व पापै प्रमुच्यते, जो इस विमल कुंड में स्नान करेगा सर्व पापै प्रमुच्यते, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। So it is said, whoever takes bath in Bimal Kund, all his sins will be eradicated. यत्र तत्र मुच्यते प्राणान मम लोक संग गच्छति, मम लोक स गच्छति, वो कहीं भी संसार में प्राण त्याग करेगा 100% गारंटी है वो मेरे धाम को आ जाएगा। So wherever he leaves his body doesn't matter, but he will go back to Godhead if he takes bath in Bimal Kund. तो यहाँ 10 मिनट में हम बोलते हैं ये है सेतु बंद रामेश्वर। So this is called the Setuban of Rameswar. तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे यादवपति ने प्रभु ने बताया था कि यहाँ भगवान ने स्वयं रामेश्वर की स्थापना की है। कहीं भी भगवान ने कोई भी अपने हाथ से विग्रह की स्थापना नहीं की, यहाँ भगवान ने इसको स्वयं रामेश्वर अपने हाथ से स्थापना की है। So this is the only deity which Lord Krishna personally he established by his own hands. और दूसरा जो है उन्होंने ही जो है अपने हाथ से बंदरों की सहायता से आगे चल करके देखेंगे सेतु बंद पुल बनाया है, पत्थरों का पुल बनाया है। So if we go little ahead, we can see how Lord Krishna made the Setuban with the stones. इसकी छोटी सी कथा आती है, इसको चलते चलते हम बोलते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण इस जो है कुंड के पास में बैठे थे, सेतु कुंड के पास पर। So one time it is said that Lord Krishna was sitting on the bank of this Setu Kund. और राधा रानी जो है उनके साथ में बैठी थी, अनेक सखियाँ थी जो उनकी सेवाएं कर रही थी अनेक प्रकार से, और हाथ प्रयास चल रहा था। So that time Srimati Radharani was sitting with Krishna with many other sakhis, and they were making lot of jokes and laughing. इधर जो है उधर जो है वृक्षों पर अनेक प्रकार के बंदर अनेक प्रकार से जो है खेल कूद कर रहे थे, बहुत से जो है जंप कर रहे थे पानी के अंदर। There are many monkeys who are jumping from the trees into the water of the pond. तो भगवान श्री कृष्ण ने बंदरों की प्रसन्नता वीरता के बारे में प्रशंसा की। So Lord Krishna he glorified the monkeys very तो much. हाँ, उस समय जो है जब वीरता की प्रशंसा की तो उस समय ललिता ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा कि जो है ललिता ने कहा था कि जो है प्रभु श्री राम ने तो समुद्र पर पुल बनाया था इन बंदरों की सहायता से, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है ये बताओ। So that time Lalita asked Krishna, Lord Ramachandra made a beautiful bridge of stone with the help of these monkeys. So what you have done in your life? तो प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण एकदम उछल पड़े, अरे सखियों तुम नहीं जानती हो, प्रभु श्री राम के रूप में मैं ही था और मैंने ही जो है बंदरों की सहायता से पुल बनाया था। So Lord Krishna got up and he said, I was that same Lord Ramchandra. So with the help of these monkeys, I only made that bridge. तो उन्होंने कहा कि मैं ही जो है जनकपुर में जाकर के सीता का साथ जो है धनुष बाण लेकर के सीता के साथ विवाह किया, मैंने ही वो धनुष तोड़ा था। So he also said that I only broke that Shiv Dhanush in Janakpuri and got the hand of Lord Mother Sita. और मैं ही जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ में दंडकारण्य वन में भ्रमण किया था, अनेक असुरों को वध किया था और साधुओं का कल्याण किया था। So I also wandered in this Dandakaranya forest with my brother Lakshman and wife Sita. और इस समय मैं जो है राधा रानी के साथ में गोपों के साथ में विहार कर रहा हूँ और अभी मैं आपके पास में बैठा हूँ, वो ही श्री राम हूँ। I am the same Sri Ram who is sitting with Srimati Radharani and all the gopis. तब जो है ललिता ने मजाक करते हुए कहा, तुम ज्यादा लंबी लंबी बात हाँकने की जरूरत नहीं। So that time Lalita told, देखा है आपकी वीरता, आप कितने महान हो। don't talk big words. I know how much great you are. उन्होंने कहा जब आप इतने ही वीर हैं तो एक छोटे से कुंड पर जो है अपने बंदरों से कहो एक पुल बना करके दिखा दें। उन्होंने तो जो है 100 योजन लंका है, 100 योजन जो है पुल बना करके पूरी सेना को पार कर दिया, तुम एक छोटे से पे बना दो भाई, तब मान लेंगे हम। So that time Lalita said, if you are a real hero, then you make a bridge just over this pond, which Lord Rama he made such a huge bridge.
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ललिता तू कैसे मेरी जो है इंसल्ट करती है, जानती नहीं है मैं इस समय क्या नाम है राधा के साथ बैठा हूँ, इतनी इंसल्ट मेरी मत कर, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं आपको जो है पुल बना करके दिखाता हूँ। तो भगवान लॉर्ड कृष्णा सेड, डोंट ह्यूमिलेट मी टू मच बिकॉज आई एम सिटिंग विथ श्रीमती राधा रानी, जस्ट नाउ आई विल शो हाउ आई कैन मेक दैट ब्रीज। और उसी समय उन्होंने बंदर को बुलाया, हरि बोल, सब आ जाइए। सो देन ही कॉल्ड ऑल द मंकीज एंड दे ऑल केम। और सारे मंकी उपस्थित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ चारों तरफ पहाड़ हैं, उनसे पत्थर लाओ और इस पर जो है क्या नाम पुल बनाते हैं। So when all the monkeys they gathered, Lord Krishna ordered them, you go and collect the big rocks from all the mountains around and make a bridge of stone. और इस प्रकार जो है सारे बंदर दौड़ गए और जो है जगह जगह से अनेक प्रकार के पत्थर ला करके प्रभु श्री राम ने प्रभु कृष्ण को देते थे, और कृष्ण को दे करके भगवान उनको सजाते थे बंदर पत्थर ला करके। और इस प्रकार हम दर्शन करेंगे सेतु बंद रामे सेतु बंद बन करके, अर्थात उस जो है सरोवर पर एक विशाल पुल बना दिया। So all these monkeys they were handing over the stone to Lord Krishna, and Krishna was arranging in a very proper fashion to make a wonderful bridge which all of us shall go and see. जैसे रामेश्वर में भगवान श्री जो है उस समय जब लंका पर जा रहे थे तो पहले उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की है, यहाँ भी उन्होंने पुल बनाने के पहले बाद में फिर इस जो है रामेश्वर की यहाँ स्थापना की है। So Lord Ramchandra he established the bridge in Rameswaram, and here also Lord Krishna also. और इधर है पीछे है हमारी लंका धाम के, So behind ये लंका भी इधर ही है पास में। जय श्री राम। Sri Lanka is also there. तो अभी हम जो है बहुत कथा तो बहुत है, अब क्या व्योमासुर की बोल रहे थोड़ा 5 मिनट में हो गया, चल याद है क्या? हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, तो वहाँ कुछ एक आध कथा होगी। अब सब कदम खंडी, चलो ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरि हरि बोल, बोलो काम्य वन धाम के, सेतु बंद रामेश्वर के, श्री श्री कामेश्वर भगवान के। तो यहाँ कामेश्वर 1 मिनट में समाप्त करता हूँ। कामेश्वर महादेव हैं, और ये जो है कामेश्वर हमारी जो है हर इच्छा को तो पूरा करते ही हैं, साथ साथ में आध्यात्मिक इच्छा को भी पूरा करते हैं। और उसका प्रमाण है जो है क्या नाम है, जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ जो क्या नाम है अयोध्या की जो है रानियाँ थी, विमल महाराज की कन्याएं थीं, क्योंकि वो अयोध्या की सारी लड़कियां थीं और उनकी जो है यहाँ पूरी हुई, तो इसलिए जो है कामेश्वर महादेव हैं, उन्होंने माता पार्वती की इच्छा को पूरा किया था। कामेश्वर, हालांकि भगवान के शिव जी हैं, एक बार उसको बोलेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। So यहाँ पर जो कामेश्वर महादेव है, so he can here Kameswar Mahadev is there, so he can not only fulfill the many material desires, but he is very famous for fulfilling any spiritual desires. The proof is the daughters of King Bimal, they all their desires got fulfilled here. इसी प्रकार जो है माता पार्वती ने जब सती के रूप में थी तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था भगवान शिव से। While Mother Sati was there, she asked a question to Lord Shiva. लेकिन वो प्रश्न बड़ा दुर्लभ था और सती जब तक रही भगवान शिव ने उसका कोई आंसर नहीं दिए। So as long as Mother Sati was there, Lord Shiva didn't answer that question. लेकिन जब वो पार्वती के रूप में, हिमालय की कन्या बन के पार्वती के रूप में और शिव जी के साथ विवाह हुआ, तो एक बार जो है वो काम्य वन में थे, उस समय उन्होंने जो है उस प्रश्न का उत्तर दिया। So when she took the second birth as Parvati, then she got married to Lord Shiva and both of them came to Kamyavan. That time Lord Shiva answered the question. और क्वेश्चन था भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। So the question was how one can get Lord Krishna. इसलिए सती के रूप में संभव नहीं हुआ। So that is why it was not possible as Mother Sati. लेकिन वही सती जब पार्वती के रूप में हुआ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से माता पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। So the same Sati, when she took birth as Parvati,
By the mercy of Lord Krishna, she could get darshan of Lord Krishna इसलिए here. उसका नाम है कामेश्वर। काम इस कामनाओं को पूरा करने वाला। That is why he is called Kameshwar. तो ये भौतिक कामनाओं तो को पूरा करते ही साथ साथ भगवत प्रेम दे करके भी उसकी जो है आध्यात्मिक कामना को भी पूरा करता है। So he can not only fulfill the material desires, but he can fulfill all spiritual desires also. इसलिए हम जो है उनको प्रणाम करेंगे और जो है उनका आशीर्वाद लेंगे। यदि हमको भी जो है एक थोड़ा सा एक चरण बिंदु, एक थोड़ी सी रज भी उनके आशीर्वाद की मिलती है तो हमारी भी जो है भगवत प्राप्ति और भगवत सेवा की कामना हमारी पूरा हो, यही हम भगवान शिव जी के चरणों में कामना करेंगे। So we will pray our obeisances to Kameshwar Mahadev, and we will pray to Kameshwar Dev to fulfill a drop of his mercy. If we get, all our spiritual desires will get fulfilled. ठीक है, हरे कृष्णा। Hare Krishna.